it's your wish, but I would prefer if you don't write it. ये किसका है? Quite a narcissist you are. Just writing, you are comfortable what you are with. Narcissist कौन होता है? You guys know who is a narcissist? It is somebody who is very self assured कि मैं जो हूँ वो तो best हूँ. You should be able to write more. Think about you getting a new identity. Humans होना कोई अच्छी बात नहीं है, honestly. I hope everybody is giving. I'll count it in the end. Don't be over smart. Everybody has given? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Okay, fine. So this we will never discuss ever. जो भी आपने लिखा है, that is for me to know what class am I going to teach, right? What kind of people you are. Okay, so coming back to our mock test, I hope everybody has this PDF, right? If you can open it, और जो भी आपके पास available है, ये solve किया है passage कभी या you have not solved it? You have already solved it. Okay, so that means you already know the answers. So should we do something else, or you want to go again with this or start with this? What do you guys prefer? इसके अंदर किसी को doubts थे या because now you have the answers तो doubts तो नहीं होंगे, but anything which you felt was challenging, or we can move to some other passage. You want to solve this? हाँ ना तो बोलो. No? Anything else? Second passage, have you guys done? India is experiencing rapid urbanization. You have done, but has it happened in the class? No? पहला भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना? अच्छा, आपने अपने आप से करे है ना? टेस्ट कौन करता है? टेस्ट कोई नहीं करता है ना? टेस्ट नहीं करते ना? क्लास में ये करते हैं. You are good people. Everybody else is human. Okay, so we'll do this one. ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लास में सॉल्व नहीं किए हैं तो we'll see. First of all, just read one line and the first line and let me know what do you understand by it. I'll pick up somebody random. पहली लाइन पढ़ो. There is a hardening view. गूगल से मतलब मत देखना और ये सब चीज़ें मत करना, है ना? एग्जाम में नहीं मिलती हैं करने के लिए. There is a hardening view in Washington that China seeks to supplant the United States as the leading world power and remake the international system in its illiberal image. So I'll highlight something. I hope this works. Something which I want the meanings for, and you don't have to Google. Just randomly पढ़ के आसपास से बताना कि समझ क्या आ रहा है इससे. वर्ल्ड पावर पता होगा बट स्टिल. Read? Everybody has read? What do you mean by hardening view? Strong. ठीक है. There is a hardening view in Washington. Washington कहाँ है? US. That China seeks to supplant. Supplant means, what could it mean? अच्छा, किसी को overpower is correct. तुम लोग do you read news? Do you know that China and US, what is the issue with them? No idea. अच्छा. Both want to वर्ल्ड पावर. वेरी गुड. फर्स्ट इशू तो यही है कि सबको वर्ल्ड पावर चाहिए. वो तो इंडिया को भी चाहिए, बट इनके बीच में मेजरली ये प्रॉब्लम है. अभी कौन है करंटली वर्ल्ड पावर? यूएस, राइट? तो चाइना सीक्स टू सबप्लांट द यूएस
means US is currently the world power. Who wants to overcome? China wants to overcome as the leading world power and remake the international system in its illiberal image. तो यूएस में जैसी स्ट्रैटेजीज होती हैं दोज आर लिबरल, ठीक है. जैसे कि अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो, आई एम राइटिंग, आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर इनफ. लिबरल, लिबरल क्या होता है? यू हैव LGBTQ राइट्स, you have democracy. US is one of the biggest democracies in the world, right? Democracy came from that country. जो भी हमारे पास आज राइट्स हैं या जो भी हम विमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, all these things began, feminism and all these things began where? in the US. तो उनकी जो आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो लिबरल है. अगर आप कभी पढ़ोगे कि यूएस क्या फॉलो करते हैं तो वो एक लिबरल देश है. दैट मीन्स लिबरल मतलब कि जो इंसान जैसे जीना चाहे जी सकता है, ठीक है. उसको कोई ये नहीं बताएगा क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या ट्रेडिशंस है. हमारी कंट्री लिबरल नहीं है, हम एक कल्चरली रूटेड कंट्री से आते हैं, राइट. इंडिया इज वन ऑफ दैट. सो illiberal image means China wants to promote that we will continue to be an illiberal. that means कि लिबरल होने से प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं. जब आप ये कहने लग जाते हो कि एक इंसान खुद बताएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके कल्चर नहीं मैटर करता है, उसके रूट्स मैटर नहीं करते हैं, राइट. आप एज अ कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ते हो, आप इंडिविजुअली आगे बढ़ सकते हो, बट लिबरलिज्म हैज़ प्रॉब्लम्स, राइट. देन China has of course fed these fears by building up its military, pressing dispute, territorial claims. What are territorial? Territory क्या होती है? Boundaries. Territories are boundaries, right? Partnering with a revanchist Russia. अब मान लो ये वर्ड का मतलब तुम्हें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है. मान लेते हैं कि हम इस वर्ड को नहीं जानते हैं. We'll underline, we'll move forward. This is just a way to how we should be reading the passage. Don't get stuck, okay? And with its own rhetoric. Rhetoric होता है narrative. या अगर नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, it's not important. President Xi Jinping of China, I don't know why, how is it sounds, has vowed to thwart what he views as US-led efforts. प्रेसिडेंट ने, अगर हम ऊपर बात कर रहे हैं कि चाइना ओवर पावर करना चाहता है या सब प्लांट करना चाहता है अपनी पावर्स को यूएस के ऊपर, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी सम स्ट्रैटेजीज नाउ दैट हाउ दे आर प्लानिंग टू डू इट, राइट. थॉट होता है जब आप नॉन वेज, पता नहीं कितने वेजिटेरियंस हैं यहाँ पे, बट शी इज ऑलरेडी मेकिंग फेसेस. सो व्हेन यू प्रेस समथिंग, जब आप किसी को दबाव डाल के किसी को कीमा बना देते हो किसी चीज़ का, पनीर का भी हो सकता है ना. पनीर के चंक्स को जब आप थ्वॉट करते हो, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हो, उसको थ्वॉट करना कहते हैं. वाउ टू थ्वॉट मतलब उसको सप्रेस करने का प्लान बनाया है. एज यूएस लेड एफर्ट्स टू कंटेन, एनसर्कल एंड सप्रेस, दीज आर योर की टर्म्स, चाइना, and has said capitalism will inevitably perish. perish क्या होता है? खत्म हो जाना. and socialism will inevitably triumph. triumph क्या होता है? जीतना, ठीक है. अब एक why I said that, because your exam is CLAT exam, right? It's going to be based on current affairs, it's going to be based on what is happening in the world, international politics and everything, ठीक है. यू माइट, इफ यू आर लकी, यू कैन गेट अ पैसेज ऑन ऑस्कर्स, है ना. कोई नाटू ने कौन सा ऑस्कर में क्या जीता, या इंडिया ने क्या जीता, या उस दिन उस समय के ऑस्कर्स में क्या हुआ. इफ यू आर वेरी लकी यू माइट गेट दैट, बट यूजुअली यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स. एवरीबडी नोज दैट चाइना इज क्लेम्स टू बी अ मार्क्सिस्ट कंट्री. वहाँ पे सोशलिज्म की बातें होती हैं. आपको पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म क्या होता है और सोशलिज्म क्या होता है, और ये आपको डेफिनेशंस याद करने से नहीं पता चलेगा. यू विल नो दिस when you are reading about these countries, when you are reading the editorials, when you are reading the current affairs. What is socialism? What is capitalism? वेरी गुड. देयर इज प्राइवेटाइजेशन. सब चीज़ कैपिटलाइज होती है, मतलब आपकी जो रेलवे सब्सिडी नहीं मिलेगी. अगर आप रेलवेज में जा रहे हो, जैसे अभी हमें सब्सिडी मिलती है ना, या प्राइसेस कम है,
रेलवे में ट्रैवल करने के, यही आप अपनी प्राइवेट कार्स लो या अपने प्राइवेट जेट्स लो, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको ज़्यादा खुद के पे फाइनेंस इनकर करना पड़ता है। गवर्नमेंट आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा रही है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स की फीस अलग होती है। वाई इज़ दैट? एंड नाउ आवर कंट्री इज बिकमिंग more capitalist. India is moving toward capitalism. Why? बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में अगर लोग टैक्स नहीं देंगे या गवर्नमेंट में करप्शन है, तो उस वजह से आपकी सोशलिज्म नहीं बन सकता है। आपको पैसा तो चाहिए ना सर देश चलाने के लिए, कैसे चलाओगे? तो इसीलिए हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। कैपिटलिज्म के एडवांटेजेस भी बहुत होते हैं कि आपको एक बेटर इंस्टीट्यूशन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल योर कोचिंग सेंटर विच इज गिविंग यू ऑल दिस amenities where you can study from professionals or have a good environment, right? अब इसका ऑपोजिट होता है सोशलिज्म। चाइना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, वॉज रशिया, जहाँ पे सोशलिज्म आया था। कार्ल मार्क्स गेव दैट, राइट? तो आई विल नॉट बोम्बार्ड यू विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू गेट मेक यू अंडरस्टैंड दैट जो आप बोल रहे थे ना, इट्स हार्ड टू इन्फर what the question is asking, so the question will ask you read between the lines, and reading between the lines मतलब ये नहीं होता कि इस गैप के अंदर ये ऊपर वर्ड क्या कह रहा है और नीचे वर्ड क्या कह रहा है उसका रिलेशन बनाना। इसका मतलब होता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता हो ऑफ द पैसेज, और वो इसीलिए पता होती है व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग एल्स देन दिस, right? That is why I began our class where 90% of the people who face problems with reading comprehensions, even though they are very good in English, even though they are very good in language, problems ये होती है कि background नहीं होता है, right? And of course this cannot be developed in one day. जैसे कि आप सोचोगे आज जाके न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो सब आ जाएगा, it doesn't work like that. You have to read little parts and chunks, and even if you have a passage like this, तो अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं समझ आ रहा है, you can go to Google and understand, right? Socialism in a brief form used to talk about कि state should own all the property. जैसे कि आपके दादा ने या उनके दादा ने कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, तो आप पे इनहेरिट हो रही है वो आप लोगों पे, तो आज इससे क्या होती है, क्लास इनइक्वालिटी बढ़ती है कि अगर जो गरीब घर से आया है बच्चा, वो तो गरीब ही रह जाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, दादा के पास नहीं थी। अब कैपिटलिज्म ये बोलेगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज और बढ़ती जाएंगी, आप और काम करोगे। सोशलिज्म क्या कहता है कि सारी प्रॉपर्टी ले लो, स्टेट ओन करेगा वो सारी प्रॉपर्टी, और हम सबको इक्वली बांट के देंगे, 5% तेरा, 5 उसका, 5 उसका, 5 उसका। उससे क्या होगा कि ना तो कोई अमीर होगा ना तो कोई गरीब होगा, और ना ही किसी के पास कोई ज्यादा गाड़ियां होंगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों को इक्वालिटी, सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी। इसको कहते हैं सोशलिज्म। इट्स ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले ये आया था रशिया में, और फिर चाइना ने इसको अडेप्ट करा है, और आज भी चाइना क्लेम करता है कि वो एक सोशलिस्ट स्टेट है, बट अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो फॉलो नहीं करते हैं डायरेक्टली। इतनी बात समझ आ गई इस पैराग्राफ के अंदर? बट सच आइडियोलॉजिकल प्रोक्लेमेशंस, प्रोक्लेमेशंस क्या हो सकता है? दावा करना, सच। ये इसने आपको एक आइडियोलॉजी दे दी कि चाइना क्या बोल रहा है कि कैपिटलिज्म विल इनएविटेबली पेरिश। इनएविटेबली होता है कि एट द एंड ऑफ द टाइम इट विल गो, राइट? इसका जाना तो लिखा ही लिखा है, राइट? एंड सोशलिज्म विल इनएविटेबली ट्रायम्फ, कि सोशलिज्म तो जीतेगा ही जीतेगा चाहे जो भी हो। नाउ दिस पैराग्राफ इज गिविंग प्रॉब्लम्स इन फर्स्ट 2 पैराग्राफ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। बट सच आइडियोलॉजिकल proclamations are in part motivated by insecurity. Most communist states, मैंने आपको बताया कम्युनिज्म होता है जिसको सोशल कम्युनिज्म, जैसे डेमोक्रेसी है वैसे ही कम्युनिज्म होता है, और सोशलिज्म एक तरीके की गवर्नमेंट रूल करने का तरीका है जैसे कैपिटलिज्म है, राइट? स्टेट्स हैव कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड मींस गिर जाना, नहीं, ठीक है, कोई चीज टूट जानी, या कोई वो कैनो ब्रेक होता है उसको आप कोलैप्स कहते हो। बिल्डिंग गिर जाए तो कोलैप्स होगी, ठीक है? एंड द चाइनीज लीडरशिप फियर्स बीइंग नेक्स्ट एंड आर मेंट मोर टू इंस्टिल। इंस्टिल मीन्स किसी चीज के अंदर कोई चीज डालना या रखना, विश्वास रखना। इंस्टिल डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी टू द पार्टी
then to reflect actual policy or fixed benefits. So what do you mean by this statement? Whoever has read the passage or able to understand? क्या बोल रहे हैं इस लाइन में? सोशलिज्म एंड ना हो, ठीक है. एंड द चाइनीज लीडरशिप फियर्स बीइंग नेक्स्ट, दैट मीन्स दे आर फियरिंग टू बी somebody who will end this, so they don't want to end the whole idea and are meant more to instill domestic confidence. domestic confidence अपनी कंट्री में ही इंस्टिल करेंगे. अगर मैं यहाँ पे सोशलिज्म लाना चाहती हूँ या इस क्लासरूम में चाहती हूँ कि हर बच्चा इक्वली पढ़े और उसके पास इक्वली रिसोर्सेज हो और इक्वली सब कुछ हो, अगर किसी के पास 10,000 का फोन है, किसी के पास 60,000 का है, तो 60 वाला 10 पे आए. तो ये मैं अपनी डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट करूंगी, राइट. आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगी रादर देन चेंजिंग द होल नेशन फर्स्ट. इट वर्क्स इन माइक्रो लेवल एट माइक्रो लेवल्स, राइट. and loyalty to the party then to reflect actual policy or fixed benefit beliefs. कि actual policies क्या होने वाली है उससे पहले आप influence करते हो लोगों को, ठीक है. अगर हम, पता नहीं तुम लोग 2014 में कितने साल के थे, but 2014 में when Modi was elected, then he won the elections because he influenced the youth of that time. कि उन्होंने बोला कि आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं या कोई भी इश्यूज हैं, वी विल टॉक अबाउट. ही हैड सम सॉलिड ग्राउंड्स, ठीक है. उनके पास कुछ सॉलिड ग्राउंड्स थे जिसकी वजह से एक्चुअल पॉलिसी थी जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है. देन आइडियोलॉजी इन चाइना इज इटसेल्फ मैलिएबल. ये पढ़े होंगे मैलिएबल मेटल स्कूल में. क्या होते हैं मैलिएबल मेटल? शेप्स में बनते. गोल्ड मैलिएबल है, सिल्वर, राइट. जो चीजें जिनको आप मोड़ के कुछ बना सकते हो उसका मतलब होता है वो चीजें या वो चीजें ऑब्जेक्ट्स या ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर मेलिएबल. इनको मेलिएबल कहते हैं रादर देन अ रिजिड केज. अब रिजिड मतलब क्या हो गया? जिसकी शेप नहीं चेंज हो सकती, वो रिजिड केज. दैट डिटर्मिन्स पॉलिसी एंड हैज बीन कंटिन्यूअली ट्वीक्ड. ट्वीक्ड मीन्स इसको आप तोड़ मोड़ के ठीक कर सकते हो या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कर देते हो, ठीक है. आई एम गिविंग यू द मीनिंग टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी व्हाट दे आर सेइंग. आई नो कि एक एक बार में एक एक वर्ड का मतलब नहीं समझ आता है सबको, विच इज फाइन. द ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू रिलेट व्हाट ईच पैराग्राफ इज सेइंग, even though we are doing it as an exercise, right. To justify the maintenance of one party rule through decades of great change. What does this line mean? Ideology in China, मैंने keywords explain करे, इसका क्या मतलब है बताओ. मेटल की तो बात मैंने बताई है, ये क्या कह रहा है? आइडियोलॉजी इन चाइना इज इटसेल्फ मेलिएबल. मतलब क्या हो इतनी सी बात का? आइडियोलॉजी क्या होती है? सोच. तो आप ये क्या इसको बोलोगे कि जो चाइना के लोगों की सोच है वो मेलिएबल है, दैट चेंज कर सकते हैं, राइट. ये मतलब वो इस लाइन का. रादर देन अ रिजिड केज मतलब, रादर देन मतलब स्ट्रिक्ट और केज ना होकर वो एक मेलिएबल फॉर्म में आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है, ठीक है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. इफ यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है. That determines policy and has been continually tweaked to justify the maintenance of one party rule. चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, CCP कहते हैं उसको. तो वो सारी पार्टी सिर्फ वन पार्टी रूल है. तो जब आपके पास कॉम्पिटिटर ही नहीं है लड़ने के लिए या सामने कोई नहीं, तो जनता किसको वोट करेगी? उसके पास तो चॉइस ही नहीं बची ना, उसको तो एक ही पार्टी को वोट करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे सोचो कंपटीशन ना हो तो आप कंप्लेन भी किसको जाके करोगे? अगर कोई एक प्रिंसिपल है या उसके ऊपर ट्रस्टीज नहीं है या डायरेक्टर्स नहीं है तो आप किसको जाके कंप्लेन करोगे कि दिस पर्सन इज नॉट डूइंग देयर जॉब करेक्टली? आपको चाहिए ना ऑपोजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. सो वन पार्टी रूल थ्रू डिकेड्स ऑफ ग्रेट चेंज. Under Mao was a Chinese communist leader. For instance, capitalists were persecuted. Persecuted मतलब
दे वर किल्ड, ठीक है। सिटीजन्स और ट्रेटर्स को जब आप पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके मारते हो उनको परसिक्यूट कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरनेशनली advanced level of a passage, right? That is why I'm spending so much time to, of course we might not be able to do it every day because हम लोग solve भी करेंगे चीज़ों को, but this is very important you to understand the level of passages which you are getting. Usually आप लोग सिर्फ solve कर रहे हो thinking that you have a good hand or good understanding of English, then you might be able to relate. This is the level of your passages. The mock tests give you the level, so you should be able to identify कि इस level के passages आ रहे हैं. That means आपको ये सारी knowledge at least 50% पहले से होनी चाहिए of the passage, right? Persecuted as counter revolutionaries. अब revolutionaries कौन होते हैं? रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? इंडिया के रेवोल्यूशनरीज कौन है बड़े बड़े? कौन लाए हैं हमारी सोसाइटी में चेंज? ठीक है, काउंटर रेवोल्यूशनरीज क्या हुए? काउंटर ऑपोजिट। रेवोल्यूशनरी मतलब जो उस तरीके से चेंज नहीं ला रहे हैं, सोसाइटी की गुड के लिए चेंज नहीं ला रहे हैं, ठीक है। सम पीपल ऑल्सो डिबेट दैट what Bhagat Singh did was not the right way or this and that. He was following the not so ahimsa mode. But the point is that whatever was done to protect the people, right? Today is, I think today is 12th June. Today is 12th June, na? Today is Sardar Udham Singh's death anniversary. You have seen that movie? पता है कौन है सरदार उधम? पढ़ो थोड़ा हिस्ट्री, स्कूल में पढ़ा होगा वैसे, बट ही वॉज दैट पर्सन हु, जलियांवाला बाग पता है कहाँ है? जलियांवाला बाग में जो हुआ था, हाँ, ही वेंट टू लंदन, ही किल्ड जनरल ओ डायर, राइट? तो ही इन इंडिया ही इज अ रेवोल्यूशनरी, कि उन्होंने 22-20 साल तक ग्रज अपने मन में रखा और तैयारी की और वहां जाके एक ब्रिटिशर को मारा जो इंडिया में थे तब, इतने सालों के बाद, ठीक है। वो इंडिया के लिए रेवोल्यूशनरी है, क्या वो ब्रिटिशर्स के लिए रेवोल्यूशनरी है? वो तो काउंटर रेवोल्यूशनरी हो गए ना, कि हमारे देश में आके हमारा बंदा मार दिया, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटर रेवोल्यूशनरी. बट अंडर प्रेसिडेंट, डोंट नो हाउ टू, ये ऊपर हो जाएगा, हाँ. But under President Jiang Zemin, the Chinese Communist Party abandoned means छोड़ देना किसी को, ठीक है, abandoned a core, okay, I'm so sorry, is it the same paragraph? Okay, चलो, I want to go up first. Okay. Abandoned a core Marxist belief in 2001 by accepting private entrepreneur as party members. What does this mean? This line. अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? If somebody can brief whatever we have read in this paragraph, just in 2-3 lines. Sorry? No, that was in the first line. अभी पिछले 2 पैराग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा है? चाइनाज आइडियोलॉजी. वेरी गुड, ठीक है, ये हमारा ब्रीफ आइडिया है. चाइना की आइडियोलॉजी में हमने क्या पढ़ लिया है? कि वो लोग मार्क्सिस्ट हैं, वो लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते. ये सब पैराग्राफ में से ही मिला है हमें. मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया, बट एवरीथिंग वाज देयर. अब व्हाट डिड दिस प्रेसिडेंट डिड? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अबैंडन्ड अ कोर मार्क्सिस्ट बिलीफ. कोर मतलब जो उनका मार्क्सिस्ट बिलीफ था सोशलिज्म का, वो छोड़ दिया बाय एक्सेप्टिंग प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. तो ये किसकी तरफ जा रहे हैं? अब कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, है ना? यू अंडरस्टैंड कि हमने स्टार्टिंग में क्यों कैपिटलिज्म की बात करी, या जब आपने पहली लाइन पढ़ी थी, मैंने आपको पहली लाइन के बाद क्यों पूछा ये सवाल कि व्हाट इज China's current state or used to be, or what do you know about US as a world power, right? So that we are able to understand the changes in the paragraph कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं. Then party members,
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आ गए, इसका मतलब अगर अडानी आ गया यहाँ पे हमारे यहाँ है, या अंबानीज हैं, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ही तो कहते हैं उसको। रिलायंस इज व्हाट, इंडिया हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट थोड़े ना है वो, या हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थोड़ी चला रहे हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है ना, तो वो कैपिटलिज्म है। China's economy today is more capitalist than Marxist and highly dependent on access to world markets. Now there is a counter statement. Earlier they explained to us कि कैसे चाइना बोलता था कि inevitably कैपिटलिज्म तो जाएगा पर ट्रायम्फ कौन करेगा, सोशलिज्म। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ लिया कि इस प्रेसिडेंट की वजह से जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप आने लगी तो इंडिया, तो चाइना अब क्या बन गया है, इट्स मोर कैपिटलिस्ट देन इट क्लेम्स टू बी। ठीक है, सो दिस इज योर करंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट दैट द China's economy is more capitalist than Marxist and highly dependent on access to world markets. Capitalism world market से ही चलता है ना। अगर आपके कोई प्राइवेट, अगर शार्क टैंक देखते हो तो उसमें सिर्फ ये थोड़ा ना होता है कि इंडिया के ही लोग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। दे वांट टू रीच द वर्ल्ड, दे वांट टू रीच टू यूएस और द अदर कंट्रीज वेयर दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। व्हाई? बिकॉज ग्लोबल मार्केट से आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है ना। आप अपने ब्रांड के वैल्यूज देख रहे हो या अपनी कंपनी के वैल्यू इवेल्युएट करने जाओगे तो वो सिर्फ इंडिया में कितनी बड़ी है उससे मैटर नहीं करता है, वो ग्लोबली कितनी बड़ी है वो भी मैटर करता है, राइट। नाउ आई कैन मूव अप ना। Okay. Assessments of China based on cherry-picked phrases from party propaganda. This is continuing. I didn't write it here. Delete. I can erase everything. I can clean now. You don't want anyone. अब क्या करना है? Okay. Erase कर दूँ. I think it's visible. कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को with the right. Okay. So assessments of everybody is understanding what I am trying to say. We will not have such detailed class every day. Again, I am saying this is just to motivate you to understand what the kind of pattern you are going to get. Don't take this one lightly. My whole point is this, right? Assessments of China based on cherry-picked phrases from party propaganda overlook the frequent gap between rhetoric and reality. अब बता सकते हो rhetoric और reality में क्या फर्क हो सकता है? Just a random guess. Unreal, real, ठीक है। तो ऊपर जो rhetoric जैसे मेंशन किया था, अगर नहीं भी समझ आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी अभी तक फ्रेजेस और पार्टी के प्रोपेगेंडा पता चल रहे थे उसमें से गैप्स दिखे, फ्रीक्वेंट गैप्स बिटवीन द रेटोरिक एंड द रियलिटी। दैट मीन्स आप कहते हैं ना कि आप टीच कुछ और करते हो और प्रीच कुछ और करते हो, राइट। दैट मीन्स कि आपकी आइडियोलॉजीज तो बच्चों को तो आप ये सिखा रहे हो कि चोरी नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, और आप खुद ऐसा एज अ अडल्ट और एज अ टीचर कई चीज़ों में ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? यू डोंट प्रीच व्हाट यू टीच, राइट। उसी तरीके से देयर इज अ गैप बिटवीन रेटोरिक एंड रियलिटी। In 2018, China cracked down on Marxist student groups and labor organizers, possibly because, as the labor scholar and sociologist Ellie Friedman has noted, the young activists embodied the Marxist principle of the CCP has long since abandoned practice. इसका मतलब क्या है? If somebody can explain it to me. In 2018 क्या हुआ? 2018 में what? Can somebody say from the back? ये क्या होता है? You are reading? Okay, read and tell me what does this mean. सिर्फ इतना बताओ 2018 में क्या बोल रहे हैं ये, बाकी का मैं किसी और से पूछ लूंगी।
बताओ। समझ आ रहा है? चाइना क्रैक्ड डाउन मतलब नहीं पता, किसी को ढूंढ लिया, ये लिखा है। तोड़ना तो तब होता है जब कोई बिल्डिंग होती है। आगे आगे क्या कह रहा है? चाइना क्रैक डाउन और मार्क्सिस्ट स्टूडेंट ग्रुप। स्टूडेंट ग्रुप को तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, बट ऐसे क्रैक करके तो नहीं तोड़ सकते ना। कोई बिल्डिंग मेंशन होती तो फिर तो आप कह सकते थे कोई बिल्डिंग है। That means that they try to dissolve it, we can say this, right? Cracked down on Marxist student group and labor organizer। मतलब जो सोशलिज्म का मेन मोटिव जो था, जब आया था सोशलिज्म, तो उसमें ये बात होती थी कि लेबर को ऑर्गेनाइज होना है साथ में, सो दैट हम लेबर ऑर्गेनाइज करेंगे। दिस क्लास विल रन टिल 5-7 minutes more। आई थिंक वी स्टार्टेड एट 4:15 ना, आई थिंक। nobody wants to answer। Okay, so that means that this part, what was I saying? हाँ, the labor scholar socialist E.L. Friedman ने जो स्टूडेंट ग्रुप था उसको, जो हमारी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी चाइना की उस टाइम की, उन लोगों ने उस स्टूडेंट ग्रुप को तोड़ दिया। इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर एक जो स्कॉलर है उन्होंने क्या कहा है कि जो यंग एक्टिविस्ट को क्यों तोड़ा गया? अगर प्रोटेस्ट होती है, कभी आपने न्यूज़ पढ़ी हो अगेन, तो आपको पता लगेगा कि कोई भी चीज़ों पे बच्चे या कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, राइट? हो सकता है आपको भी कभी लाइफ में करनी पड़े। घर से शुरू होता है ये रिबेलियन, है ना? जैसे आप बोलोगे कि मुझे ये नहीं, ये करना है, या यहाँ नहीं जाना, या मुझे क्यों नहीं रात को 9 बजे बाहर घूमने दे रहे, है ना? वो तो जाता है अपने दोस्तों के साथ, मैं नहीं जा रही, राइट? So all these kind of rebellions begins at different times, and people who are more organized वो politically rebel करते हैं। तो इनका क्या मतलब था रिबेल करने का? so that the Marxist principle of the CCP has long since abandoned practice। मतलब कि जो आप क्लेम कर रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो। तो बच्चों ने, जो भी वहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स थे, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करा टू शो और टू आस्क कि आप लोग क्लेम तो ये, जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अगर आपको मना कर दे फंडामेंटल राइट से कि आपने लड़कियों को हम राइट टू एजुकेशन नहीं देते हैं, चलो इतनी सी बात कह देते हैं कि लड़कियों को राइट टू एजुकेशन नहीं है, तो क्या आप ग्रुप्स में इकट्ठे आके इस चीज़ का विरोध करोगे? नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अब आपने फ्रीडम देख ली है। दूसरी बात, अगर कोई और देश में इक्वल पैरिटी है, पे पैरिटी है, अगर लड़का और लड़की सेम जॉब पे है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते आप कि लड़के को ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि उसको फैमिली का ध्यान रखना होता है, और लड़कियों को वो सैलरी नहीं देंगे। आप उसके लिए भी प्रोटेस्ट करोगे, राइट? सो दिस इज व्हाट दे डिड, दैट दे सेड कि जो आप चीजें बता रहे हो वो आप प्रीच नहीं कर रहे हो, जो आप बोलते हो। Likewise, Beijing has for years emphasized the sanctity of national sovereignty and non-interference in a country's domestic affairs, yet has provided diplomatic cover of Russia's invasion of Ukraine। पता है रशिया और यूक्रेन का क्या इशू है? आई एम अज्यूमिंग कि पता होगा, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए, चाहे चाइना यूएस तक नहीं भी जा रहे हम। यस, व्हाट वॉर? सो कॉल्ड वॉर क्या होती है? सो कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर तो नहीं है वैसे, तो रोज रोज मिसाइल्स गिर रही हैं, कोल्ड वॉर तो बिल्कुल भी नहीं है। Leading Chinese intellectuals openly acknowledge the difficulty of reconciling what China says with what it does। वही बात आ गई जो अभी तक हमने समझा कि जो चाइना कह रहा है वो कर नहीं रहा है, तो रिकनसाइल मतलब इकट्ठा हो नहीं पा रहा है, जो आप बोलते हो वो कर नहीं रहे हो। Even we don't believe much of what we say, the Chinese economist Yao Selection। The moment I learned you said next। is known for his pragmatic views has said, pragmatic होते हैं बहुत ही अपने व्यूज को प्रेजेंट करना in a very political way, right? Our goal is not to defeat liberalism, but instead to say that what we have can be as good as what you have।
सो दिस वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन। अब समझ आ रहा है जो भी इंसान है ये, इसकी बात से क्या लग रहा है कि पहले तो आपके चाइना के प्रेसिडेंट्स बोलते आए कि वी नीड टू बिकम अ सोशलिस्ट स्टेट। नाउ व्हेन द इट हैज बीन कॉट कि जो आप कर रहे हो आप अपने लोगों को ही अंदर सप्रेस कर रहे हो, वो बोल रहे हैं कि मुझे तो ये करना ही नहीं, हमें तो ये करना है, वी वांट टू बी एज गुड एज व्हाट यू हैव, हमें लिबरलिज्म को बीट नहीं करना है। Jiang Shigong, a legal scholar and apologist for Mr. Zi's political philosophy, has written that socialism is not ossified dogma, but instead an open concept awaiting exploration and definition. What does this mean now? That we have been, अभी तक हम यही सारी बातें समझ रहे थे कि सोशलिज्म कैसे एक पॉइंट तक कैपिटलिज्म के टोटली ऑपोजिट था। अब विद द मॉडर्न टाइम्स ये अपनी बात को मर्ज कर रहे हैं, और इन्होंने हमें पैराग्राफ के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आए ये। रिबेलियन आप अपनी कंट्री में ही खुद कम कर रहे हो। आपके जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या पढ़ी होगी, इंडिया में जब लिबरलाइजेशन हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने जब किया था, उससे पहले इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे बिकॉज वी वर नॉट एबल टू जनरेट इनकम। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया तो बड़ी बड़ी कंपनीज आई इंडिया में, जो आज आप देखते हो यहाँ पे है, जिनके ऑफिसेज हैं। वो क्यों है? अब हम लोकल फॉर वोकल हो रहे हैं, बट उस टाइम हमें ज़रूरत थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, ठीक है। तो हमने भी तो अपनी कल्चरल लूज छोड़ के अपने लोगों को जॉब्स देने के लिए, अपने लोगों को इस कंट्री में रखने के लिए वर्ल्ड पावर्स को और वर्ल्ड कंपनीज को एंटर करने दिया। Mr. G and CCP apparently see the United States as trying to keep China perpetually subordinate. Subordinate means नीचे रखना, ठीक है। आपके नीचे जो काम करता है वो आपका सबऑर्डिनेट होता है। And vulnerable, vulnerable means, sorry, जरूरी नहीं, vulnerable means in a bad situation या कमजोर, ठीक है। जैसे आप किसी के सामने वल्नरेबल हो जाते हो कि मदर्स अपने पेरेंट्स के सामने, यू आर व्हाट यू आर विद फ्रेंड्स। अपोजिंग व्हाटएवर चाइना डज और एडवोकेट्स इन एन इंटरनेशनल सिस्टम दैट बीजिंग बिलीव्स, बीजिंग का क्या है? थैंक गॉड, फेवर्स द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डेवलप्ड डेमोक्रेसीज। ये कौन बात कर रहा है कि जो सीसीपी पार्टी है वो ये क्लेम करती है कि आप यूएस को, वर्ल्ड पावर्स को, कि आप यूएस को प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है। एंड डेवलप्ड डेमोक्रेसीज, जो कौन सी है डेवलप्ड डेमोक्रेसीज? सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? डेवलप्ड, यूएस ही है। बट एट अ मिनिमम चाइना सीम्स मोर इंटेंट ऑन मॉडिफाइंग एस्पेक्ट्स, मॉडिफाई मतलब चेंज करते रहना, ऑफ अ सिस्टम अंडर विच इट हैज प्रॉस्पर्ड, प्रॉस्पर्ड मीन्स डेवलप्ड, making it safer for autocracy rather than replacing it. Autocracy means that you are trying to develop a system in your country which will go, and it's not democracy but खुद का self rule करना, ठीक है। Mr. Z often couches this effort in his political slogans like the China dreamed and shared future for humankind. जैसे हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया एंड ऑल काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, but there is continuing debate in China over what these visions really mean. That means they are still having debate what these visions really mean and what cost and risk China should accept in seeking global leadership. कैसे आप global leadership की तरफ target कर सकते हो? We are also developing and they are also what? Contradictory है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन से socialism था, कैसे शुरू हुए थे, और contradictions है। China's overseas development largesse expands, right? For example, is limited by the imperative of addressing its own persistent development needs at home. Persistent होता है continuously, ठीक है। development करना कहाँ पे? needs at home. home means in the country. Research by the scholar Min Ye has shown same for other key Chinese strategies for widening its influence, its efforts to internationalize and renminbi and reduce dollar dominance. That means they are trying to take their currency. कैसे global power बनते हो आप? अगर जब हमारा रुपी यूएस डॉलर से महंगा हो जाएगा तो हम ग्लोबल पावर है, सिंपल एज दैट, राइट। जब हमारे रुपए की, पैसे की वैल्यू गिरती है तो उससे पता चलता है कि हम अभी डेवलपिंग स्टेजेस में हैं और हमारी कंट्री को क्या क्या इंटरनेशनली लॉस हो रहा है, ठीक है। वो आपके उसमें करेंसी में शो होता है।
its efforts to internationalize the renminbi and reduce dollar dominance are constrained by the tight grip it keeps on the currency's value as well as other capital controls. These policies help stabilize means stability, ठीक है, its economy and prevent capital flight, but they limit the renminbi's global appeal. Right? What do you understand by this paragraph? Anybody who can explain? Just one line में कि क्या conclusion है इस paragraph? China won. China trying to be intellectual, but they are not. They are trying to be intellectual. Intellectual why? They are trying to be global power. हाँ, in resources, and they are trying to seek things, but it's not happening. Right? This is the conclusion. Fine. Did you guys understand how we moved from each paragraph? We have not focused. See, I would have asked you to read the paragraph on your own and solve the questions. But we have read the paragraph so that we can solve the question, or even if you would want to take time to solve these questions. We have 5 minutes or no? Do you want to solve them? There's just 5 questions. Right? Okay. अच्छा, अभी मैं एक randomly I'll ask somebody to just make connections, so just explain it to me. आंसर नहीं मांग रही, just give me the this. But समझ आ रहा है ना? वो according to the passage, why does China's leadership make ideological proclamations? Proclamations क्या बताया था मैंने? दावा करना, ठीक है? क्यों चाइना आइडियोलॉजिकल प्रोक्लेमेशन बना रहा है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है? अब हम अपने ऑप्शंस देखेंगे अलग अलग से. टू रिफ्लेक्ट फिक्स्ड बेनिफिट एंड शेप एक्चुअल पॉलिसी. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ अभी तक कि वो आइडियोलॉजी क्यों समझाना चाह रहा है, चाहे अपने वाले देश को समझाना चाहे चाहे बाहर को समझाना चाहे. क्या वो ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी एक्चुअल पॉलिसी ऐसी और इसीलिए आप हम पे विश्वास करो? ये पैसेज से आपने समझा कि एक्चुअल पॉलिसी थी ऐसी या नहीं थी? हाँ या ना? सिंपल नो. तो शुड आई क्रॉस दिस वन? सॉरी. ओके, then let's go to option C and then we'll go to BD. Okay. To justify containment efforts against the United States. कंटेनमेंट होता है कि उनसे उनके जो एफर्ट्स हैं वो हम छोड़कर अपनी बात को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. ऐसा कुछ लगा आपको पैराग्राफ में? या अगर आप डाउटफुल हो तो हम इसको सर्कल कर सकते हैं. क्या ऐसे आपको लगा कि वो यूएस से compete करने की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में? ये तो कर रहे थे, बात तो कर रहे थे compete करने की, पर क्या एफर्ट्स इसलिए हैं ताकि वो यूनाइटेड स्टेट्स से ओवर कंटेन कर सके वो जो आइडियोलॉजी रख रहे हैं यूएस में? क्या हम भी वो आइडियोलॉजी रख रहे हैं इस पैराग्राफ में? चाइना, आर दे ट्राइंग टू डू दिस? डू यू थिंक दिस ऑप्शन इज राइट? नो. फॉर व्हाट रीजन? I know you have the answer key, but still, what is the reason? ये doubtful लग रहा है? हो सकता है. To instill domestic confidence and loyalty to the party. ठीक है? अपनी आइडियोलॉजी वो प्रोक्लेम क्यों कर रहे हैं? आइडियोलॉजी से पहले क्या इन्फ्लुएंस होता है? जब मैंने बताया था अगर मुझे इस आइडियोलॉजी से यहाँ इस कुछ भी काम करना है तो मैं पहले अपने क्लासरूम को इन्फ्लुएंस करूंगी ताकि यहाँ से मैं लोग उठा के कहीं पे आइडियोलॉजी का यूज कर सकूं. तो ये जो आइडियोलॉजी दे रहे हैं क्या वो डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प कर सकती है? अगर जो हमारी आइडियोलॉजी है, कैन इट हेल्प टू गेन कॉन्फिडेंस? राइट. सो दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर, कुड बी. Then to establish China as the leading world power. ये तो लार्ज गोल है ही है. ये तो पूरा पैराग्राफ बात ही यही कर रहा है कि उनको स्टार्ट ही ऐसे करना है. टू एस्टैब्लिश
China as a leading world power, right? Now if you had question with this, if you had doubts to justify containment efforts against the United States, आप लोगों को ये सब strategies पता होती हैं कि या explain किए हैं या आप खुद भी use करते हो while you are eliminating the wrong ones, right, which are less suitable. For this, just it doesn't talk about the ideologies of the US, right? This was not the correct answer and this is not, because they are not talking about that. Then we come to the two very confusing options, right? The whole paragraph talks about कि चाइना वर्ल्ड पावर कैसे बने, कर ही रहा है ये तो सारे, तो एक नेचुरल सा इंस्टिंक्ट होगा कि यही सही आंसर रहेगा. But of course you have the right to be confused and see what is the happening between the two options, but they are talking about how leadership make ideological proclamations. सबसे ज्यादा आइडियोलॉजी से वर्ल्ड पावर बन जाती है, सिर्फ आइडियोलॉजी से, आपकी आइडियोलॉजी अच्छी हो या आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, इससे आप वर्ल्ड पावर बन सकते हो. वर्ल्ड पावर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? अभी जो हमने पढ़ा, इस इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, और क्या अच्छा होना चाहिए? हेल्थ अच्छे, हेल्थ सेक्टर, कुछ भी चीजें जो आप वर्ल्ड पावर के लिए बन रहे हो, यू हैव टू बी द डोमिनेटिंग पावर इन द वर्ल्ड टू बी बिकम द ग्लोबल पावर. यू हैव टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. तो आइडियोलॉजी लॉजिकली सबसे ज्यादा कहाँ रिलेट करती है? डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस पे. ठीक है, ये मैंने आपको पैसेज पढ़ाया है, दैट इज वाई I am able to see that the relation is there. Once we have taught, if you read it again, once I have discussed it with you, you'll be able to understand why ideology only affects the domestic confidence. Starting के paragraph में भी था ये कि आपकी आइडियोलॉजी डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने they wanted to influence people. That is why the correct answer is to instill मतलब किसी के अंदर जागरूकता करवाना, उसके अंदर ये बात बिठाना, अपने कंट्री के लोगों का विश्वास जीतना. ठीक है, आइडियोलॉजी से आप डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस जीतते हो. ठीक है, आई होप दैट यू आर एबल टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस आंसर मैचेस द क्वेश्चन, चाहे सॉल्व ना कर पा रहे हो, राइट? देन based on the information provided in the last paragraph, which of the following statements can be inferred about China's approach to global leadership? Can you read the options? Just give me the one जो आंसर नहीं हो सकता. What was it? Shri. Okay, just read. All of you can read. See, China's desire for global leadership outweighs its commitment to domestic stability. What is the meaning of this? Outweigh करना क्या होता है? भारी होना, जैसे कि कोई एक चीज दूसरी चीज पे हावी हो रही है, आउटवे करना वो होता है. तो चाइनाज डिजायर फॉर ग्लोबल लीडरशिप आउटवेज इट्स कमिटमेंट टू डोमेस्टिक स्टेबिलिटी. मतलब चाइना ग्लोबल लीडरशिप के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के कमिटमेंट से ज्यादा. इस वजह से ये लास्ट पैराग्राफ जो आपको रीड करना पड़ेगा, उससे आपको समझ आएगा कि क्या वो ऐसी बात कर रहा था लास्ट पैराग्राफ में. वो तो बात कर रहा था ना कि हम कैसे डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ के चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, या एक ग्लोबल आइडिया या ग्लोबल पावर बनने के लिए व्हाट वी कैन डू, राइट? सो सी कुड नॉट बी आंसर अकॉर्डिंग टू आई थिंक कशिश. ओके, व्हाट अबाउट बी, ए, बी एंड डी? B should not be. B should be correct. China's efforts to internationalize the renminbi are hindered by the current currency's stability. Currency की बात की है उसने, instability की. What is the reason for you to say this? What is the reason for you to say this? That this is the answer? This could be a possible answer you are saying, है ना? China's efforts to internationalize the renminbi are hindered by the currency instability. कि अगर करेंसी नहीं अच्छी है इसलिए वो इंटरनेशनली बढ़ नहीं पा रहा है. इस ऑप्शन का ये मतलब है. ठीक है, फॉर दोज हु डिडंट अंडरस्टैंड. ए, चाइनाज ओवरसीज डेवलपमेंट लार्जेस्ट इज अनकंस्ट्रेन्ड बाय डोमेस्टिक डेवलपमेंट नीड्स. अनकंस्ट्रेन्ड मतलब
कि जो डोमेस्टिकली ये जो नीड्स कर रहे हैं वो नहीं रोक रही है इसको अनकंस्ट्रेन, पर वो तो रोक रही है ना। अगर आप डोमेस्टिकली अच्छा काम नहीं कर रहे हो, अनकंस्ट्रेन होता है रोकना, अनकंस्ट्रेन मतलब सारी चीज खुल रखी है, कुछ किसी को कोई रोकना नहीं है किसी भी चीज में। चाइना's overseas development largest is unconstrained by domestic development needs. What do you think this could be the possible answer? कीज देख के मत बोलो, अगर लग रहा है तो बोलो कि कंफ्यूजन है between B and D. So I should cross A. Okay, D we have not read. China's approach to global leadership is influenced by cost benefit considerations. What are cost benefit considerations? Mutual trade के लिए Mutual trade म्यूचुअल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब ये कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन करने के लिए। म्यूचुअल ट्रेड यानी कि कोस्ट कटिंग कुछ हो जाएगी टैक्सेस के लिए दोनों को। हाँ ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, cost benefit they are talking about can be inferred about China's approach to how they can achieve global leadership. दो ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, या तो इंटरनेशनलाइज कर दो, रेमिनिबी आर हिंडर्ड बाय द, या तो करेंसी से इंस्टेबिलिटी हो रही है उस वजह से ग्लोबल लीडरशिप बन सकती है, या फिर कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशंस. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रेलेवेंट आंसर? व्हाई? आंसर देख के थोड़ी होता है डी. गिव मी एन ऑप्शन, गिव मी एन आंसर, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? लास्ट पैराग्राफ अगर पढ़े, डायरेक्ट बोला है चाइनाज ओवरसीज डेवलपमेंट लार्जेस्ट, अगर लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो, इज लिमिटेड बाय द इम्पेरेटिव ऑफ एड्रेसिंग इट्स ओन परसिस्टेंट चाइनीज स्ट्रैटेजीज फॉर वाइडनिंग इट्स इन्फ्लुएंस. अपना खुद का इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं. इट्स एफर्ट्स टू इंटरनेशनलाइज द रेमिनी, ये एक पॉइंट है. And reduce dollar dominance are constrained by the tight grip it keeps on the currency's value, as well as other capital controls. तो सारे जो कैपिटल कंट्रोल, इसके अंदर तो सिर्फ रेनमिनी की बात हो रही है, इस ऑप्शन के अंदर सारे कॉस्ट बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, विच मीन्स कि आप अपने लोकल करेंसी वैल्यू को भी बढ़ाओगे, इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ाओगे, राइट. दिस पैराग्राफ इज, अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करोगे लास्ट पैराग्राफ अगेन, दिस विल बी द नेचुरल आंसर, राइट. सो यू वाइल आंसरिंग, अभी 7 मिनट का, क्या 5 मिनट का टारगेट नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू मूव बैक एंड फोर्थ. जो क्वेश्चन है, यू शुड बी एबल टू रीड द लास्ट पैराग्राफ एंड मेक कनेक्शंस. अंडरस्टूड? ओके, we'll do this one as well. Which of the following is suitable title for the passage? China's rigid ideology and fixed beliefs, China's quest for global dominance. Do I have to move to next page? This one's the same question. The complexity of China ideology and actions and the inevitable triumph of socialism in China. अब ये हो सकता है क्या? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये डी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इनएविटेबल ट्रायम्फ हो गई है पैसेज में, बोल दिया कि सोशलिज्म तो भाई बेस्ट है, ऐसा पैसेज में पता चला? कोई मिले इसके आंसर्स आपको? नहीं मिले, तो फोर्थ तो कट है ना. चलो मैंने बोल के कर दिया. फर्स्ट सेकंड पे वापस जाते हैं, आई डोंट वांट टू गो बैक. चाइनाज रिजिड आइडियोलॉजी एंड फिक्स्ड बिलीफ्स, पैसेज का टाइटल ये हो सकता है कि किसी की रिजिड बिलीफ्स हैं और फिक्स्ड आइडियोलॉजीज है. ए पार्ट ठीक है. नेक्स्ट, चाइनाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, आई थिंक दैट बी कुड बी. ग्लोबल डोमिनेंस की तो बात हो रही थी सारे पैसेज में. और थर्ड ऑप्शन है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चाइनाज आइडियोलॉजी एंड एक्शंस, ये ज्यादा सही है. क्यों? क्योंकि ग्लोबल डोमिनेंस तो चाइना चाह रहा है, पैराग्राफ ये नहीं दिखा रहा है. पैराग्राफ ने तो हमें एक्सप्लेन करा कि चाइना फर्स्ट 2 लाइनों में ग्लोबल डोमिनेंस बनना चाहता है, पर क्या सारे पैराग्राफ ने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया है?
नहीं किया। सारी आर्ग्यूमेंट ने क्या टाइटल सपोर्ट किया है कि कॉम्प्लेक्सिटी है चाइना की आइडियोलॉजी में और उनके एक्शंस में। तो दिस कुड बी आर टाइटल, right? I know it's not going to be as easy as we are doing it here, but if you try to think logically, then this is something which is relating all the factors. ठीक है? Next question is, according to the passage, which of the following statements about China's economy is true? China's economy is primarily based on Marxist principles. Economy ऐसी है या नहीं है? China's economy is unaffected by access to world markets. Is it unaffected? Unaffected तो हो ही नहीं सकती, कोई भी इकोनॉमी नहीं हो सकती, ठीक है? China's economy is more capitalist than Marxist. It is, right? वो हमने देखा कि वो कैसे मार्क्सिस्ट लोगों को दबा रहे हैं. China's economy is heavily reliant on domestic consumption. इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे तो रिलाइड होती ही है आपकी कंट्री की इकोनॉमी, बट और भी फैक्टर्स से होती है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एवरीथिंग. आई डोंट थिंक सी शुड बी द आंसर. इफ एनीबडी थिंक्स दे कैन अपोज. आई डोंट थिंक दैट डी भी हो सकता है, राइट? व्हाट डू यू थिंक? डी हो सकता है? Then China's economy is primarily based on Marxist principles. You have two options. China's economy is more capitalist than Marxist. अब ये दोनों तो ऑपोजिट चीजें हो गई. वो क्लेम तो ये करते हैं कि हम मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स पे हमारी इकोनॉमी चलती है, पर पैराग्राफ ने बताया है, ये बताया पैराग्राफ ने. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बी. एवरीबडी सेटिस्फाइड विद बी? हाउ बी हैज कम? ये तो जो देखो पैसेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि जो ऑथर कह रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है, अपने एनालिसिस पे नहीं. वो स्टार्ट इस चीज से कर रहे थे, और हम अगर आप आज भी गूगल करोगे इज चाइना मार्क्सिस्ट कंट्री, तो वो बोलेंगे कि हाँ चाइना एक मार्क्सिस्ट कंट्री है, पर द पैसेज हैज शोन अस द कॉन्ट्राडिक्टरी. इसीलिए पैसेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बता के एक्सप्लेन करे. तो व्हाट वुड बी द आंसर? Last, China, in the passage the term revanchist most likely means. अब ये तुम्हारे तुक्के पे है. देखो इस क्वेश्चन में आप दिमाग नहीं लगा सकते, अगर तुमको कॉन्टेक्स्ट देख के समझ आ रहा है तो आएगा. That is how you need to read more passages so that you develop vocabulary. Come to paragraph second. China has of course fed these fears by building up its military, pressing dispute, territorial claims, partnering with the revisionist Russia. Russia started communism, okay, with its own rhetoric. अब ये फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने डिफरेंट मिलिट्री बना ली, डिफरेंट डिस्प्यूटेड कर लिए, टेरिटोरियल क्लेम्स अलग बना लिए रशिया से, पार्टनरिंग विद द रिवांचिस्ट रशिया. सो इट कुड बी रेवोल्यूशनरी रशिया, इट कुड बी रिएक्शनरी रशिया, इट कुड बी रिविजनिस्ट. रिविजनिस्ट क्या होता है? कोई चीज को रिवाइज करना. रिविजनिस्ट नहीं हो सकता यहाँ पे. रिटेलिएटरी भी नहीं हो सकता. रिटेलिएट क्या होता है? लड़ना आपस में. रशिया और चाइना का लड़ना, मार्क्सिस्ट कंट्रीज हैं तो वो आपस में नहीं लड़ेंगे, या तो वो रेवोल्यूशनरी होगा या वो रिएक्शनरी होगा. व्हाट डू यू थिंक इज मोर सुटेबल? व्हाई? ये कैसा जवाब हुआ? कैसे अलग हो गया? लास्ट क्वेश्चन इज दिस. तो रेवोल्यूशनरी होता है जो रिबेल करता है. अभी मैंने आपको बताया था रिबेलियन जो होता है वो ही रेवोल्यूशन लाते हैं. तो रशिया और चाइना आपस में रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट फाइटिंग, दे कुड बी रिएक्शनरी. दैट मीन्स कि अगर रशिया की जो आइडियोलॉजी थी उससे रिएक्शन लेके या डिफरेंट हो सकती है चाइना की आइडियोलॉजी. So this could be a possible answer. You might get confused between these two, but then you'll have to reread the passage to understand and know a little bit of context. बात का context क्या हो रहा है, right? I hope this class at least
50% made sense to all of you. No, 100% it can't make sense. Acha. But do you guys understand what we have tried to do? Right? From the second on paragraph which we are going to do tomorrow, if you are willing, you can read it from your home and everything. Don't try to look at the answers. Just don't try. It's fine to get confused in the class. It's fine to say wrong answers and to understand यहाँ पे कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है. But if you participate more and we are able to solve things together, तो जाकर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, रादर देन ये कि आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाई जा रहे हो. उसको एनालाइज करना भी होता है, राइट, विच विल बी डूइंग इन हियर. आई होप, एंड प्लीज स्टार्ट रीडिंग समथिंग. Just we'll also do in the following classes we'll do editorials, at least one editorial which we are able to वीक में 1 या 2 बार तो कर ही लेंगे, ताकि हम ये सारे फैक्टर्स जान पाएँ कि क्या क्या पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ताकि आप एक हैबिट भी डेवलप करो टू रीड पैराग्राफ्स, right? And we will, because passage is the most important thing in your syllabus for this CLAT exam, we'll be solving and learning more about this, right? I think I've taken much more of your time, so thank you so much. I hope you understood whatever we did today. Thank you.